السلام علیکم جی۔ تو پیارے پیارے لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہو۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کہیے تو جناب، ایپیسوڈ کا ڈریشن کیسا لگا اور ایک دن میں 2 ایپیسوڈ کیسی لگیں؟ اگر آپ لوگوں نے کہانی سننی شروع کر دی ہو تو یہ بھی بتائیے گا کہ کہانی کا آغاز آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی تک جو ہے وہ امید ہے کہ کہانی اچھی جائے گی۔ کہانی کا آغاز کافی دلچسپ ہے۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب، اس ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے معصوم لڑکی نے۔ ناول کا نام ہے بول کفارہ کیا ہوگا۔ مصنفہ ہے مہرین سعید، قسط نمبر 3۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا۔ ایک ہاتھ گھٹنے پہ تھا اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی لبوں پر جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ حارب، بابا اور گرینڈ پا کو دیکھ کے معصوم سے منہ بنا رہی تھی کہ آج بچا لیں۔ لیکن تینوں تو ایسے کھڑے تھے جیسے ان کا نوال سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خضر ابراہیم کے سامنے ہی جواب دہ ہے۔ کیسے آئی ہو؟ پہلا سوال سنجیدگی سے آیا تھا۔ نوال نے آن کی آن نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر سے نظریں جھکا لیں۔ نوال کے جواب نہ دینے پر اس نے ہاتھ پہ لگی گھڑی دیکھی۔ لوکل، نوال فوراً بولی تھی۔ اس کے اس لفظ پہ سامنے والے نے اپنا غصہ بمشکل روکا۔ کس کے ساتھ؟ دوسرا سوال آیا تھا۔ دوست کے ساتھ، وہ فوراً بولی، جبکہ نظریں ابھی بھی زمین کو دیکھ رہی تھیں۔ وین میں؟ تیسرا سوال۔ نہیں، رکشہ تھا۔ وہ ترکی بترکی جواب دے رہی تھی اور ایک دم جھٹکے سے وہ اٹھا اور اس کے سامنے جھک کے میز پہ اپنا موبائل اٹھا کے وہ اس کے بالکل پاس سے گزر کے گھر سے نکل گیا۔ اس کے پاس سے گزرنے پہ نوال نے آنکھیں بند کی تھی، لیکن وہ جا چکا تھا اور نوال نے منہ بنا کے حارب کو دیکھا۔ مطلب وہ ناراض ہو چکا تھا اور اس کی ناراضگی کا مطلب نہ تو وہ اب اسے کالج ڈراپ کرے گا، نہ ہی شام کو واک پہ لے کے جائے گا، اور نہ ہی اس کی کسی ٹیسٹ کی تیاری میں مدد کرے گا، اور نہ ہی وہ اس سے اب کوئی بات منوا پائے گی۔ مطلب اب وہ پورا ہفتہ نوال کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ مطلب وہ ایک ہفتہ اسے خضر کے بغیر گزارنا تھا۔ نوال دھپ سے صوفے پہ گری تھی۔ بابا اور گرینڈ پا بھی ناراض ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کا لاڈلا ناراض ہو چکا تھا۔ اگر کوئی اس کا ہمدرد بچا تھا تو وہ صرف حارب ابراہیم ہی تھا، جو کہ اس کے غم میں برابر کا شریک تھا، کیونکہ جانتا تھا جتنا غصہ خضر کو نوال پہ تھا اتنا اس پہ بھی تھا۔ نوال نے منہ بنا کے سامنے بیٹھے حارب کو دیکھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے؟ میری کتوں والی کی، حارب نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ یہی تو، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب؟ نوال نے بات ادھوری چھوڑی۔ اگلا 1 ہفتہ مجھے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، حارب نے منہ بنا کے پیشن گوئی کی۔ نوال نے اس کی بات پہ کشن اٹھا کے اسے دے مارا تھا۔ نوال بیوی، میں خضر ابراہیم نہیں ہوں، کشن کیچ کر کے وہ غصے سے بولا۔ غصے سے بولنے کی صرف کوشش کی گئی تھی۔ آپ خضر ابراہیم ہو بھی نہیں سکتے۔ ہی از اونلی ون۔ اپنا بیگ اٹھا کے کندھے پہ رکھتے وہ اترا کر بولی تھی۔ وی آر ٹوینز، حارب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مسٹیکنلی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آئی۔ مزہ آ جاتا 3-4 لگا دیتے تمہیں، وہ پیچھے سے وہ جل کے بولا تھا۔ وہ مجھے مار سکتے ہیں بھلا؟ ایک دم مڑ کے وہ پوچھ بیٹھی، لہجے میں غرور تھا۔ حارب نے ہاتھ ہلا کر اسے دفع کیا تھا۔ وہ مسکراتی اوپر جاتی یہ سوچ رہی تھی کہ اب اگلا پورا ہفتہ کیا ہوگا۔ اف، اسے کہاں عادت تھی خضر ابراہیم کے بغیر رہنے کی۔ بابا کی طرف چلو، ڈرائیور کو ایک دم حکم دے کے وہ سکون سے سر سیٹ کی پشت پر لگا گیا اور آنکھیں موند لیں۔ جانتا تھا نوال گھر پر ہی ہوگی، اس نے شاید اسے مارننگ شو میں دیکھا بھی ہوگا، اور بابا تو شاید آرام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ تو بھری بیٹھی ہوگی۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی، نوال کو اچھے طریقے سے جاننے کے بعد بھی وہ وہیں جا رہا تھا۔ حارب کو میسج کیا تھا اس نے، گرل فرینڈ گھر ہے؟ دوسری طرف وہ آن لائن ہی تھا، ویلا ڈاکٹر، خضر نے بے ساختہ سوچا۔ فوراً میسج سین کر لیا گیا تھا اور اب ٹائپنگ ہو رہی تھی۔ جی بالکل گھر ہی ہے، اور آپ کا اقرار نکاح اپنے گناہ گار کانوں سے سن بھی چکی ہیں، حارب نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ مطلب ابھی حال کشیدہ ہے؟ اس نے دوسرا میسج کر کے حالات کا جائزہ لینا چاہا۔ ایسے ویسے مجھ پہ گولہ باری ہو بھی چکی ہے، حارب نے سکون سے اپنی بے عزتی کا بتایا تھا۔ وہیں جا رہا ہوں میں، سکون سے سامنے والے کو بتایا گیا تھا۔ نہ کر میرے یار، حارب کو جیسے یقین نہ آیا ہو۔ آپ کی شادی کی عمر ہے، مرنے کی نہیں، حارب نے خبردار کیا تھا۔
शट अप। खिजर का आखिरी मैसेज हमेशा यही होता था। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, हारिब ने उसे दुआ दी थी। वो नमाज के बाद बाबा को देखने आई थी। वो सो रहे थे। वो मुस्कुराती बाहर लान की तरफ बढ़ी और उसी वक्त वो अंदर दाखिल हुआ। निवाल अपना दुपट्टा ठीक करती एकदम रुकी और वो अंदर की तरफ बढ़ता एकदम रुका। आई एम निकाफाइड, कुछ देर पहले कहा गया उसका जुमला निवाल को याद आया था। वह निवाल की तरफ बढ़ा और निवाल फौरन अंदर की तरफ बढ़ गई। निवाल, उसने बेसाख्ता उसे पुकारा। वो रुक गई, लाशऊरी तौर पे। रुकना नहीं चाहती थी मगर रुक गई, जाने क्यों। 7 साल का अरसा उन दोनों के दरमियान था। निवाल की उसकी तरफ पुश्त थी। वो कुछ बोलता लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और वो अंदर चली गई। कुछ ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये 7 साल उन दोनों के दरमियान से निकल जाएं। खिजर वहीं से पलट गया और अंदर की तरफ बढ़ती वो रुक गई और मुड़ के उसे देखा जो जा चुका था। हमेशा वही जाता था। वो रुकता क्यों नहीं था, चला क्यों जाता था। निवाल को उस पे नहीं बल्कि खुद पे गुस्सा आया था। वो उसके सामने बैठी थी। अबीरा के हाथ में निवाल का हाथ था। यूनिवर्सिटी के गार्डन में वो दोनों बैठी थीं। तुम दुआ करो अबीरा, कुछ ऐसा हो जाए कि ये 7 साल का अरसा मैं भूल जाऊं। मेरा दिल बड़ा हो जाए उनके मामले में। मेरे लिए उन्हें माफ़ कर देने का अमल अल्लाह आसान कर दे। निवाल ने उसका हाथ दबाते उससे कहा। आमीन, अबीरा ने दिल से कहा। अबीरा, एक सवाल पूछूं? वो उठने लगी थी जब निवाल बोली। हाँ जी। वो फिर से बैठकर उसे देखने लगी। तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? आप ही की शादी हो गई है, वो तुम्हारे सामने ही आरेज के साथ रहती हैं। अबीरा, मैं अगर सोचूं कि खिजर की किसी से शादी हो जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाए। निवाल ने सीने पे हाथ रखा था। अबीरा मुस्कुराई। कभी कभी जो हम सोचना भी नहीं चाहते वो हो गुजरे ना निवाल, तो ना जान निकलती है ना ही जिंदगी रुकती है। हादसे होते हैं और वक्त गुजर जाता है बस। वो कंधे उचकाकर बोली। कैसे अबीरा, दिल को सुकून कैसे आता है? वो अभी भी परेशान थी। निवाल, दिल को सुकून नहीं आता, दिल की बगावत करना पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। वो बोली तो निवाल ने उसे देखा। कैसे होता है सब्र? तुमने उसे दुआओं में मांगा था, सब्र भी किया उस पे, फिर भी अल्लाह ने उसे आप ही की झोली में डाल दिया। कैसे हो तुम इतनी पुरसकून? निवाल ने आज उससे वो सवाल पूछ ही लिया जो कई दिनों से वो पूछना चाह रही थी। क्या करूं और? उसने कुछ देर के बाद निवाल से पूछा। क्या मतलब है क्या करूं? तुम? निवाल को समझ ही नहीं आया क्या कहे उसे। रोना नहीं आता क्या? अरे इसको बद्दुआ दे के दिल हल्का कर लो, रो लो, यही कुछ होता। तुम अनोखी हो। निवाल ने उसका हाथ एकदम छोड़ के कहा। रो लूं, शिकवा कर लूं, अरे इसको बद्दुआएं दे दूं। निवाल, मेरा सब्र ज़ाया हो जाएगा। उसे छोड़ के खड़ी होती निवाल एकदम रुकी। उसने इस नहज पे कभी नहीं सोचा। मैंने उसे दुआओं में मांगा, रोई भी हूँ उसके लिए, लेकिन सिर्फ इतने दिन जितने दिन मुझे लगा था वो मुझे मिल जाएगा निवाल, तब जब वो अभी बरीरा आपी का नसीब नहीं बना था। लेकिन अब ना तो रोना आता है ना ही कोई शिकवा, और मुझे करना भी नहीं। मुझे सब्र करना है निवाल, ताकि इस सब्र के बदले अल्लाह मुझे आरेज से कोई बहुत बेहतर दे। वो भी उसके साथ खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अब दोनों क्लास की तरफ बढ़ रही थीं। पता है तुम अल्लाह को बहुत पसंद होगी, निवाल ने एकदम हसरत से रुक के अबीरा को देखते हुए कहा। अबीरा ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें मैं कहाँ से नेक लग रही हूँ जो मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं? पागल। अबीरा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें किसने कहा अल्लाह को नेक लोग पसंद हैं? निवाल ने उससे पूछा। मतलब? अबीरा को समझ नहीं आई। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ नेक लोगों को पसंद करता है। उसे तो सब्र करने वाले, मोहब्बत करने वाले, परहेजगारी वाले, इखलाक वाले और निवाल अभी बोल ही रही थी जब अबीरा फौरन बोली, और माफ़ कर देने वाले पसंद हैं। अबीरा की बात पे वो चुप कर गई। हाँ, माफ़ कर देने वाले। शर्मिंदगी से गर्दन झुका के वो बोली। अल्लाह जी ने शायद इसलिए इतना अजर रखा है, किसी को माफ़ कर देना आसान थोड़ी है। दिल में सोचती वो अबीरा के पीछे क्लास में चली गई। वो आज बहुत खुश थी, जानती थी आज वही उसे लेने आया होगा। 7 दिन, ये 7 दिन उसने कैसे गुजारे वो जानती है या उसका अल्लाह। किस कदर वो खिजर पे इन्हसार करती थी। वो तो खुश भी तब होती जब वो खुश होता था, और इन 7 दिनों में उसने ना अपनी शक्ल दिखाई और ना ही निवाल की शक्ल देखी। ऐसा सिर्फ निवाल को लगता था, और आज वो जानती थी वो उसे लेने आया होगा। निवाल जैसे ही कॉलेज से निकली वो कार से टेक लगाए खड़ा था। वो भाग के उसकी तरफ बढ़ी। वो मुस्कुराता उसकी तरफ पलटा। निवाल ने लंबा सांस खारिज करते उसे देखा। वही उसका लापरवाह अंदाज। मुस्कुराते हुए वो निवाल के लिए कार का दरवाज़ा खोल रहा था।
میں نے بہت یاد کیا آپ کو۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا رکا اور ایسے ہی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ بالکل بھی عادت نہیں مجھے آپ کے بغیر رہنے کی۔ وہ بیگ کو کندھے سے اتار کے اس کے کھولے گئے دروازے کو مزید کھول کے بیٹھتی بول رہی تھی، اور نوازادی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال اسے اس کے بغیر رہنا ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں کھڑے خضر کا دل کیا اسے بتا دے کہ وہ تو کچھ دنوں میں چلا جائے گا، لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ اس نے سر جھٹک کے دوسری طرف آ کے کار سٹارٹ کی۔ وہ اسے نہیں بتائے گا اور اس نے نہیں بتایا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ ماما اور ڈیڈ کی پلاننگ پہ حیران تھی۔ کیا مطلب وہ اور آریز؟ لیکن کیوں؟ اس نے کبھی ایسے نہیں سوچا۔ مام ابھی بھی بول رہی تھی کہ وہ بریرہ آپی کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہی آریز اور اس کا رشتہ بھی آفیشل کر دیا جائے گا۔ آریز ان کے ماموں کا بیٹا تھا جو کہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ آریز کے والدین نہیں تھے اور چونکہ وہ مام کا فیورٹ بھانجا تھا جو نانی گھر چھوڑنے کی بجائے مام اسے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ ابیرہ کو اس سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ ابیرہ کا ہر کام بہت خوشی سے کرتا تھا، جبکہ ابیرہ نے دیکھا تھا بریرہ آپی اس کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس نے آریز کو بچپن سے دیکھنے کے بعد بھی، اس پہ ہر کام کے لیے انحصار کرنے کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب مام نے اسے اپنی مستقبل کے پلان سے آگاہ کیا۔ اس نے مڑ کے آریز کو دیکھا۔ وہ تو ایسے سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھا جیسے جانتا ہو ایسا ہی ہوگا، اور اس نے مڑ کے بریرہ آپی کو دیکھا جو کہ آریز کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ خبر نہ صرف ابیرہ بلکہ بریرہ کے لیے بھی اتنی ہی شاکنگ تھی، لیکن وہ دونوں چپ ہی رہی تھیں۔ ابیرہ اور بریرہ دونوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن مام، ڈیڈ اور آریز رغبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر صحن میں چکر لگاتے ناخن منہ میں ڈالے گہری سوچ میں غرق تھی جب وہ ان کے گھر داخل ہوا اور اسے دیکھ کے نیہا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ہیلو، وہ ہاتھ ہلاتا آگے آ گیا۔ ویئر از ادیب؟ اس نے بالکل اس کے قریب آ کے جھک کے پوچھا کیونکہ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، وہی روکھا سا جواب حاضر تھا۔ ہمیشہ اس کا نیہا کو دیکھ کے یہی سوال ہوتا اور ہمیشہ نیہا کا اس کو دیکھ کر یہی جواب ہوتا۔ کچھ پتا بھی ہوتا ہے تمہیں؟ سامنے والے نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس سے کندھے اچکا کر پوچھا۔ نیہا نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا اور جواب میں اس کی طرف سے نرم سی مسکراہٹ اچھالی گئی تھی۔ میرا بس چلے اس بندے کے دانت توڑ دوں، اسے گنجا کر دوں، اس کے اور اس کی گرل فرینڈ کے درمیان لڑائی کروا دوں، شوٹ ہی کر دوں اس کو۔ وہ اس کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی۔ او ہیلو، کدھر؟ اس نے چٹکی بجا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مانا کہ تھوڑا سا زیادہ ہینڈسم ہوں، لیکن وہ شرارتی لب و لہجہ اپنائے آنکھوں میں اسے دیکھ کے ابھرنے والی شوخی سے وہ پھر سے ذرا سا جھک کے اسے چھیڑنے لگا، لیکن وہ بے ساختہ بول گئی اور پھر ایک دم اپنی زبان دانتوں تلے دبا کے اپنی بے خودی پہ اس نے آنکھیں بند کی۔ سامنے والوں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی جبکہ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ ارے شہروز بیٹا، دادی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ دادی کی طرف بڑھا، ہلکا سا جھک کے ان سے پیار لیا۔ بس ابھی، ان کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا۔ نیہا تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ بھائی کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ ان کے بھائی کہنے پہ پاس کھڑے شہروز نے کھانسی کی جبکہ نیہا مسکرائی۔ جی دادی آپ بٹھائیں انہیں، میں چائے بنا کے لائی بھائی کے لیے۔ اس نے شہروز کو دیکھ کے بھائی پہ خاصا زور دیا تھا۔ اس بار گھورنے کی باری شہروز کی تھی اور مسکرانے کی باری نیہا کی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی، تب تک شہروز دادی کے ساتھ ان کی مخصوص جگہ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ارے واہ، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ مسکراتا تیزی سے سیڑھیاں اتر کے آیا۔ شہروز اس کے ساتھ انجینئر تھا، دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے باوجود بھی شہروز ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے اس کے باپ کی سفارش تھی، لیکن ادیب وہ سفارش کے حق میں نہیں تھا۔ شہروز نے 1000 دفعہ کوشش کی کہ وہ اسے بھی اس کمپنی میں اپنے باپ کے بلبوتے پہ جاب دلوا سکتا ہے، لیکن ادیب کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے۔ تمہیں انٹرویو کے لیے کال آئی تھی نا؟ شہروز نے ایک دم بیٹھتے ادیب سے پوچھا۔ ادیب نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا بنا؟ دادی اب تسبیح پکڑے ادیب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہی جو ہر بار ہوتا ہے، تگڑی سفارش والے آگے اور ہم جیسے۔ وہ بے ساختہ چپ کر گیا۔ شادی کب کر رہے ہو شہروز بیٹا؟ دادی نے فوراً بات بدلی اور شہروز نے ان کے سوال پہ سامنے سے آتی نیہا کو دیکھا۔ پل بھر میں نگاہ کا زاویہ بھی بدلا تھا کیونکہ اس کا بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ڈیڈ نے تو آفر کی ہے، جیسے ہی مجھے کوئی پسند آئے ان کو بتا دوں۔ ٹرے سے کپ اٹھاتے اس نے نیہا کو دیکھ کر جملہ پورا کیا۔ ادیب اور دادی کو چائے پکڑاتے نیہا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، جیسے ہی کوئی پسند آئے بتا دوں۔ رہندہ نہیں شہروز سبزواری۔
वो बड़बड़ाती ऊपर की तरफ बढ़ गई। ग्रैंडपा ने हारिब को देखा, वो भी अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। प्लीज ग्रैंडपा प्लीज, वो उनके हाथ पकड़े नीचे बैठा मिन्नत कर रहा था। एक तो आप उसे बता के नहीं जा रहे, ऊपर से उसे अपने साथ बांध के जाना चाहते हैं। खिजर इब्राहिम, आप हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? हारिब ने तुनक के उसे कहा। उसने मुड़ के उसे मलामती नजरों से देखा। आप जानते हैं मैं उसे क्यों नहीं बता रहा। बात रही निकाह की तो मेरी वापसी पे भी तो होना ही है, जाने से पहले क्यों नहीं? वो अटक गया था अपने मुद्दे पे। बिल्कुल नहीं, तुम जाना चाहते हो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन परसों तुम्हारी फ्लाइट है और कल निकाह करवा दे। ये क्या फजूल डिमांड है खिजर? ग्रैंडपा ने उसका हाथ पीछे को झटक दिया। अगर मैं निवाल को मना लूं तो आप दोनों को कोई एतराज नहीं होगा। किचन की तरफ जाते हारिब अपने कमरे की तरफ बढ़ते ग्रैंडपा एकदम उसकी तरफ घूमे। तुम उसे बता के मनाओगे? हारिब ने शर्त रखी। सिर्फ मनाने की बात हुई है, वो खफकी से बोला। सच बता के मनाना है। ग्रैंडपा भी जिद कर बैठे। आप दोनों जानते हैं मेरे जाने का सुन के वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। निकाह तो हो ही गया। फिर वो मुंह बना के सोफे पे बैठ गया। हारिब उसकी तरफ और ग्रैंडपा उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ गए। कल निकाह करके परसों तुम अगर लंदन चले गए तो वो बहुत बदगुमान हो जाएगी। ग्रैंडपा ने बात शुरू की। बदगुमानी कैसी? लंदन उसी का ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ। उसके एक ख्वाब के लिए अगर मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ तो उसे तो खुश होना चाहिए ना। खिजर ने दोनों को बारी बारी देखा। अगर तुम उसे बता के मना के जाओ तो कोई मसला नहीं, हारिब ने उसे समझाना चाहा। बता के नहीं जा सकता, वो बहुत रोएगी, जाने नहीं देगी, लिख के रख लें। वो हमेशा की तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अटक गया था। ठीक है तुम मना लो उसे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी होगी। ग्रैंडपा ने उसकी जिद के आगे हार मानी थी। सच्ची? वो खुश हुआ था। ग्रैंडपा ने सर इस बात में हिला दिया। वो खुशी से उन्हें गले लगा गया, लेकिन हारिब को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ था। वो कमरे में चक्कर लगा रही थी। वो और आरेज, उफ, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। सोचे भी क्यों? आरेज उसके ड्रीम पर्सन से 1% नहीं मिलता। ठीक ठाक हैंडसम है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो इस फिर भी पे अटक क्यों रही थी। मेन वजह शायद बरीरा आपी की आंखों में आ जाने वाली वो चमक थी जो कि आरेज को देख के उनकी आंखों में किसी अंधे को भी नजर आ जाती। तो वो कैसे आपी की पसंद पर डाका डाल सकती है? वो सोचते हुए आरेज के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां वो अपना सामान पैक कर रहा था और पास ही बरीरा आपी खड़ी थी। तुम खुद भी जानते हो वो अभी छोटी भी है और उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं। ये सब जानते बूझते भी तुम मुझे इग्नोर करके उसके लिए हाँ बोल आए हो। वो अलमारी की तरफ बढ़ा तो बरीरा आपी भी उसके पीछे ही बढ़ी थी। अबीरा को समझ नहीं आया कि वो सामान क्यों पैक कर रहा था, और क्या वो ये भी जानता है कि बरीरा आपी उसे पसंद करती हैं। इसके बावजूद भी वो कैसे लापरवाही दिखा रहा था, न जाने क्यों, लेकिन अबीरा को उस पर गुस्सा आया था। आप खुद भी जानती हैं कि यह अंकल और आंटी की ख्वाहिश है। वो अलमारी से अपनी शर्ट निकाल के पलटते हुए बोला। मेरी ख्वाहिश का क्या आरेज मुस्तफ़ा? आपी ने एकदम उसका कॉलर पकड़ के उसे गुस्से से कहा। अबीरा ने मुंह पे हाथ रखा था। स्टे इन योर लिमिट्स, खुद से दूर करते आरेज गुस्से से बोला। अबीरा, मेरी भी ख्वाहिश है, अंकल आंटी की भी यही ख्वाहिश है, और दूसरी बात अंकल ने कहा है कि वो आपके लिए जल्दी कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। आप जा सकती हैं। आरेज ने कमरे की तरफ उंगली करके कहा। बरीरा आंसू रोकती बाहर की तरफ बढ़ी, जहां वो सुन सी खड़ी थी। अबीरा ने आपी को देखा, जहां उसे पहली बार अपने लिए नफरत नजर आई। वो बगैर सोचे समझे अंदर की तरफ बढ़ी। आरेज भी अपना सामान पैक करके पलटा ही था जब वो उसके सामने खड़ी हुई। डैड और मॉम को मैं समझा लूंगी। बात रही आपकी ख्वाहिश की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरी ख्वाहिश नहीं है। अबीरा ने उंगली उठा के उसे कहा। यू शुड आल्सो स्टे इन योर लिमिट्स। आरेज के अंदर छन से कुछ टूटा था। वो उसे कुछ कहता वो बाहर की तरफ बढ़ गई और फिर मुड़ी। आरेज की आंखों में बेयकीनी और होंठ एक दूसरे में पेवस्त। अबीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वो तेजी से उसके कमरे से निकल गई और पीछे आरेज मुस्तफ़ा की खाली खाली नजरें दरवाजे पर अटक गई थीं। वो यकीन करना चाह रहा था कि अबीरा ऐसा ही कह के गई है जो उसे सुनाई दिया है। 2 मिनट तक होश में आने के बाद वो अबीरा के पीछे भागा था। बीरा, वो उसे इसी नाम से पुकारता था। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। आरेज ने भाग के उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब निदारद। वो खामोशी से पलट गया, क्योंकि रात का वक्त था और वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो उससे कल बात कर लेगा, यही सोचते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
कॉलेज मत जाना आज, मुझे ज़रूरी बात करनी है। सुबह सुबह खिज़र की तरफ से उसे मैसेज मौसूल हुआ था। वो खिज़र जो उसे कभी छुट्टी नहीं करने देता था, वो उसे आज छुट्टी का बोल रहा था। निवाल ने आंखें खोल के आंखों को अच्छी तरह मसल के वो मैसेज दोबारा पढ़ा। वो खिज़र का ही मैसेज था। वो खुशी से उछली। याहू, आज मलका निवाल जैदी छुट्टी करेंगी। उसने बेड पे खड़ी होकर एक हाथ पेट पे रख के दूसरा हवा में खोल के खुद को खुद ही सलाम पेश किया और भाग के वॉशरूम की तरफ बढ़ी। फ्रेश होकर निकली तो बाहर से उसकी कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो इतनी जल्दी आ गया था, खैरियत तो है? यूं नहीं जाना उन्होंने? वो सोचती बाहर की तरफ बढ़ी जहां वो मुकम्मल तैयारी के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। आज उसकी तैयारी कुछ अलग सी थी, ऐसा निवाल को लगा था। जल्दी से बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। निवाल की सुने बगैर उसे हुक्म देता वो बाहर की तरफ चला गया। निवाल ने एक बार अपना हुलिया देखा, भागकर वापस कमरे में गई, कपड़े अलमारी से लिए और वॉशरूम घुस गई। 15 मिनट बाद उसका हुलिया बाहर जाने के काबिल हुआ तो वो तेजी से बाहर भागी। जहां वो कार के पास टेक लगाए खड़ा उसे घूर रहा था। बाबा सो रहे हैं। निवाल ने उसकी घुरी नजरअंदाज की। मैं बता चुका हूं उन्हें। वो कार का दरवाजा खोल के बैठ गया। निवाल के लिए कार का दरवाजा उसने पहले ही खोल दिया था। इतनी भी क्या जल्दी, निवाल ने दिल में सोचा। जानती थी कि वो हमेशा उसे कार में बिठा के दरवाजा बंद करके फिर खुद बैठता था। निवाल बैठी तो खिज़र ने उसकी तरफ झुक के उसकी तरफ का दरवाजा बंद किया। निवाल ने सांस तक रोक लिया। उसके कलोन की खुशबू बहुत करीब से महसूस हुई। वो पीछे होकर कार स्टार्ट करने लगा। निवाल को आज वो बदला बदला सा क्यों लग रहा था? निवाल उसे देखते हुए सोचने लगी। उसने पहले किसी रेस्टोरेंट से उसे नाश्ता करवाया और फिर उसे लिए शॉपिंग मॉल आ गया। वो आगे आगे चल रहा था जबकि निवाल उसके कदम के साथ कदम मिलाने के लिए भाग रही थी। हम शॉपिंग करने क्यों आए हैं? निवाल ने पूछा। तब तक सेल्स गर्ल खिज़र की तरफ बढ़ी। सर, ये रहा ड्रेस। सेल्स गर्ल के हाथों ड्रेस लेके वो एकदम एड़ी के बल घूमा। निवाल इससे पहले कि कुछ समझती वो मुस्कुराया। विल यू मैरी मी मिस नवाल जैदी? उसकी तरफ झुक के खिज़र के अगले जुमले ने उसे साकन कर दिया। नवाल आंखें फाड़े मुंह खोले उसे देख रही थी। ये बात वो दोनों जानते थे कि उनके घर वाले, इनफैक्ट वो दोनों भी यही चाहते थे और एक न एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन अभी ऐसे? नवाल ये सब नहीं सोचा था। से यस मिस नवाल। उसकी तरफ हल्का सा और झुक के उसकी आंखों में देखते खिज़र ने कहा तो वह न जाने कब और कैसे सर इस बात में हिला गई। खिज़र की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, जैसे वो जानता था यही होगा, ऐसे ही होगा। ये ट्राई करके आओ। उसको मजीद कुछ सोचने का मौका दिए बगैर वो उसे चेंजिंग रूम में धकेल चुका था। कुछ देर तक वो पार्लर के सामने कार रोक चुका था। गो इनसाइड, तुम्हारे नाम की अपॉइंटमेंट है, तैयार होके आओ। निवाल के ना समझे से देखने पर वो बोला। दोपहर का खाना वो उसे खिला चुका था, लेकिन खिज़र इससे पहले कि वो कुछ पूछती वो बोला, गो इनसाइड, लेट हो जाएंगे हम। उसने उसकी बात टोक दी। वो बाहर निकल के पार्लर चली गई। खिज़र ने हारिब को कॉल मिलाई। तैयार है सब? वो उससे पूछ रहा था। जी। खिज़र प्लीज़ उसे सब सच बता के लाना। हारिब खिज़र को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन खिज़र ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके कॉल काट दी। जब तक वो तैयार होती रही वो पार्लर के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ देर तक वो मुकम्मल तैयारी के साथ उसके सामने खड़ी थी। पार्लर वाली ने उसकी लुक मुकम्मल बदल दी थी। खिज़र ने देखने से परहेज किया था और कार का दरवाज़ा खोल के निवाल को बिठाया। खिज़र और निवाल का घर करीब करीब ही था। खिज़र उसे अपने घर लाया, जहां गैर मामूली रौनक देख के निवाल ने हैरत से खिज़र को देखा। चलें? उसके हाथ के आगे हाथ फैला के खिज़र ने मुस्कुरा के उसे कहा। यहाँ क्या है? निवाल ने नासमझी से पूछा। हमारा निकाह, वो उसका हाथ पकड़ के बोला। निकाह? वो रुक गई। तुमने हाँ की थी आज ही, वो उसकी तरफ मुड़ के बोला। लेकिन खिज़र आज ही क्यों? मेरा मतलब इतनी जल्दी क्यों? उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। सब राजी हैं नवाल। ग्रैंडपा ने कहा था कि अगर तुम राजी हुई तो हमारा निकाह आज ही होगा और तुमने हाँ कहा था। वो उसे बातों में फंसा चुका था। कहा था ना? उसने फिर से तस्दीक चाही। उसने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं थी। खिज़र ने लंबा सांस खारिज किया। मेरे लिए? उसके आगे हाथ फैला के खिज़र ने जैसे आज से पूछा और वो यहाँ हार जाती थी। मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाते नवाल ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ी। हारिब भाग के नवाल की तरफ बढ़ा। नवाल उसे तैयार और खुश देख के हारिब को बहुत खुशी हुई। उसे लगा खिज़र उसे सब बता चुका होगा और फिर वो दोनों के दरमियान चलती अंदर की तरफ बढ़ी, जहां बाबा और ग्रैंडपा उसकी तरफ बढ़े। वो बहुत प्यारी लग रही थी और फिर कुछ ही देर में वो नवाल जैदी से नवाल खिज़र इब्राहिम बन चुकी थी। वो खिज़र पे अब अपना मुकम्मल हक जता सकती थी।
खिजर और वो पास बैठे थे जब हारिब ने दोनों की तस्वीरें बनाई थी और दोनों को वहीं बैठे सेंड भी कर दी। कितना मुकम्मल मंजर था। वो हैरत से उसे देख रही थी। बरीरा आपी उसके दाएं तरफ खड़ी थी और मॉम बाएं। डैड उसे अपना बहुत सा ख्याल रखने का कह रहे थे और वो डैड से गले मिला। डैड से गले मिलते उसकी नज़र अबीरा पे पड़ी। वो डैड के बिल्कुल एक कदम पीछे खड़ी थी, इसीलिए जब आरेज डैड के गले लगा तो अबीरा ने उसे बहुत करीब से देखा। पल की पल आरेज ने भी नज़र उठा के उसे देखा था, लेकिन उसकी आंखों में वहशत अबीरा का दिल दहला गई। वो कहाँ जा रहा था? अबीरा को याद आया वो कल सामान पैक कर रहा था। बरीरा अभी खुश लग रही थी, मॉम उदास थी और आरेज वो पता नहीं खुश था या उदास, लेकिन उसने अबीरा से अल्लाह हाफिज नहीं कहा था। वो सबसे मिला था, घर के माली बाबा से भी, सिवाय अबीरा मलिक के, जो हैरत से उसे बस जाता देख रही थी। वो जा क्यों रहा था, और जा भी रहा था तो कहाँ? जा भी रहा था तो उसे क्यों नहीं पता था? वो खाली खाली नजरों से उसे देखती वहीं खड़ी रह गई और मॉम, डैड और बरीरा आपी उसे बाहर तक छोड़ने चले गए और फिर वो चला गया था, अबीरा मलिक को गिल्ट में छोड़ के। वो तो उससे माफ़ी मांगने का सोच रही थी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो और आपी एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि आपी आरेज को पसंद करती थी। उसने सोचा था कि वो आरेज से कल की बदतमीजी की माफ़ी भी मांग लेगी, लेकिन ये सब तो हुआ ही नहीं। वो वहीं खड़ी रह गई थी। वो अपने कमरे में बैठी थी। निकाह के बाद से उसने खिजर को नहीं देखा था। असूलन तो खिजर को उससे मिलकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए थी, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया था। अब भी ईशा की नमाज के बाद उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो जाग रही थी। अगर खिजर आता और वो सो गई हुई तो कितना बुरा लगेगा। ये सोचते वो खुद को सोने से रोक रही थी, लेकिन वो नींद से जल्दी हार गई और फिर बेड से टेक लगाए वो आंखें मूंद गई। सूट निकाह वाला ही जेबतन किया हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी खिजर से मिलने के बाद उतारे। हाँ, ज्वेलरी वगैरह सब उतार चुकी थी वो, क्योंकि नमाज पढ़नी थी। सूट कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं था, आरामदेही था और फिर खिजर की पसंद का था। दूसरी तरफ वो सामान पैक किए हारिब, ग्रैंडपा और बाबा से मिल रहा था। तीनों उसे मलामती नजरों से देख रहे थे। तीनों के साथ वो खुद भी जानता था कि वो गलत कर रहा है, बहुत गलत। कम से कम उसे नवाल से मिलना चाहिए था, एक बार उसे बताना चाहिए था, लेकिन वो ना जाने क्या सोच रहा था। इस वक्त वो नवाल के घर पे ही मौजूद थे। मैं नवाल को देख लूं, उसने बाबा से जैसे इजाजत चाही। बाबा ने उसे बेबसी से देखा। वो समझता क्यों नहीं, बेबसी से सर इस बात में हिला दिया था उन्होंने। वो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ा। जानता था वो सो चुकी होगी। जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला, वो हल्का सा मुंह खोले बेड से टेक लगाए सोई हुई थी। खिजर मुस्कुरा के आगे बढ़ा। उसका गर्दन के गिर्द दुपट्टा एहतियात से उतार के साइड पर रखा। उसे बेड पे ठीक से लिटाते उस पर कंबल डाला। हल्का सा उसकी पेशानी को अपने होठों से छूते वो मुड़ा। एकदम कुछ याद आया था। जेब से ब्रेसलेट निकाल के उसका हाथ कंबल से निकाल के उसने निकाह का तोहफा उसे दिया था। विल मिस यू सो मच, उसकी पेशानी पे अपनी पेशानी टिका के खिजर ने बहुत आहिस्ता से कहा और खुद को बमुश्किल संभालते हुए उसके कमरे से निकला था। दरवाजे तक जाके फिर से उसे देखा। एक तो उसे छोड़ के जाना इतना मुश्किल था, ऊपर से अब तो उस पर पूरा का पूरा हक सिर्फ खिजर इब्राहिम का था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या करके जा रहा था। वो उसका इंतजार करते सोई थी। उसे अपना पाबंद करके अपने साथ बांध के वो उसे छोड़ के जा रहा था। उसे छोड़ के जा तो उसके लिए रहा था, लेकिन उसे बताए बगैर। वो उसे बताना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने उसके जाने का सुन के बहुत रोती, इसीलिए वो बता नहीं पाया और वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके जाने के बाद वो कितना रोएगी। वो चला गया था और फिर अबीरा मलिक का सुकून भी साथ ही ले गया। वो लंदन गया था, अबीरा के अलावा सबको पता था। उसे वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, शायद इसीलिए वो चाहता था कि अबीरा और उसकी बात पक्की हो जाए। और अबीरा मलिक क्या कर चुकी थी अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था। और अबीरा सोच रही थी कि बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं, वो वापस आएगा तो वो उससे माफ़ी मांग लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अबीरा मलिक नहीं जानती थी कि यह सब इतना आसान नहीं था। वो सुबह उठी तो कुछ देर तक बिस्तर में ही लेटे आंखें बंद किए वो कल के बारे में सोच रही थी। मुस्कुराते उसने उठ के अपने बाल समेटे और बाल समेटते उसका हाथ रुका। हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को काफी देर वो देखती रही और फिर मुस्कुरा के वॉशरूम में भागी, क्योंकि कुछ देर तक ही खिजर आ जाता उसे कॉलेज छोड़ने के लिए। अभी वो कल भी उससे नहीं मिली, इसीलिए आज वो उससे मिलने को बेताब थी। जल्दी से तैयार होकर वो भागती नीचे आई। बाबा से उनके कमरे में मिल के आई। वो उसे खुश देख के उसे कुछ भी ना बता पाए। फिर उसने नाश्ता बनाया। बाबा तो देर से ही करते थे, लेकिन उसने जल्दी से नाश्ता किया और गाड़ी का हॉर्न सुनाई देते ही वो बाहर की तरफ भागी, जहां वो कार से टेक लगाए खड़ा था। वो उससे नाराज थी क्योंकि वो कल उससे नहीं मिला था। उसके करीब पहुंची तो वो घूमा। आप? हारिब को देख के निवाल ने मुंह बनाया।
चलें। हारिब ने घड़ी देखी। क्या मतलब? नवाल ने नासमझी से उसे देखा। कॉलेज लेट हो रहा है ना? हारिब ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वो खिजर इब्राहिम नहीं था। आप क्यों? खिजर कहाँ है? वो वहीं खड़ी किसी खदशे के तहत पूछ बैठी। हारिब ने लंबा सांस खारिज करते उसे देखा। हारिब के हाथ में मोबाइल पर दूसरी तरफ वो मौजूद अपना सांस रोक गया। वो चले गए। उसे नजरें चुरा के हारिब ने कहा। नवाल को लगा वो कुछ गलत सुन चुकी है। दूसरी तरफ वो भी सांस रोके उसका जवाब सुनना चाहता था। चले गए, लेकिन कहाँ? नवाल ने 2 मिनट तक उससे पूछा। लंदन। एक लफ्ज और नवाल फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। हारिब ने आगे बढ़ के कार स्टार्ट की। नवाल 2 मिनट तक अपनी जगह से ना हिली और हारिब ने अपने मोबाइल पर चलती उसकी कॉल को ड्रॉप कर दिया। वो जो इस तरह में लंदन में अपने कमरे में मौजूद कान से फोन को लगाए चक्कर लगा रहा था, टू टू की आवाज पर उसने कान से फोन हटा के देखा। हारिब का नंबर दोबारा मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसे सही मानों में परेशानी ने घेरा था। वो हारिब के साथ कार में कब बैठी, कब हारिब ने उसे कॉलेज उतारा, कब वो अपनी क्लास में पहुंची, कब उसके साथ आके अबीरा बैठी, उसे कुछ नहीं पता। कल से आज तक का पूरा दिन उसकी आंखों के आगे लहरा गया था। वो उसे निकाह के बाद नहीं मिला, उसे इतनी बड़ी बात नहीं बताई उसने, वो चला गया था। ये बात उसे हारिब के मुंह से पता चली। मतलब वो कल जानता था कि वो चला जाएगा, इसीलिए कल उसने निकाह का प्लान किया था। कितनी आसानी से वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाता रहा और वो वही करती रही जो वो चाहता था, और हमेशा की तरह वो अपनी मनवा के चला गया था उसे बताए बगैर। उसकी खुशी, उसकी इजाजत तो बहुत दूर की बात है, खिजर इब्राहिम ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो क्लास में बैठी उससे बदगुमान हो रही थी और लंदन में अपने कमरे में बैठा वो सर पकड़ चुका था। क्या वो वाकई ही गलत कर चुका था? गलत या बहुत गलत, ये तो खिजर इब्राहिम को वक्त ही बताएगा। वो 1 हफ्ता तो इस बात पर यकीन ही करती रह गई थी कि वो चला गया है। हाँ, इस दौरान उसका मोबाइल ऑफ रखा गया था। वो बोलाई सी सिर्फ कॉलेज जाती और फिर वापस आके कमरे तक महदूद हो जाती। सबसे ज्यादा बाबा को और हारिब को परेशानी हुई थी। और फिर 7वें दिन वो अपने कमरे से निकली। हाँ, खिजर के बगैर तो वो पहले भी कई दिन रही है। जब भी वो नाराज होता उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाता था, लेकिन सिर्फ 7 दिन। इस बार बात 7 दिन से आगे निकल गई थी और फिर 7वें दिन वो बिल्कुल फ्रेश थी, अपने कमरे से निकली। बाहर लाउंज में ग्रैंडपा, हारिब और बाबा बैठे थे। हारिब के सामने मेज पर लैपटॉप की स्क्रीन पर वो जगमगा रहा था। नवाल ने मुस्कुरा के आके बाबा को पीछे से हग किया। ग्रैंडपा को हग करके उसने पास बैठे हारिब के बाल बिगाड़ दिए थे। वो ये सब लैपटॉप से देख रहा था, मतलब वो नॉर्मल हो गई थी। हारिब ने उसके ऐसा करने पर सामने स्क्रीन को देखा, जहां वो हाथ में कॉफी का कप लिए संजीदा सा बैठा नवाल को घूर रहा था, जिसने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं चाय बना के लाती हूँ, वो मुस्कुरा के कहती किचन की तरफ चली गई और हारिब, ग्रैंडपा और बाबा ने उसे देखा, जो कि अपना कॉफी का कप साइड पर रख चुका था। उसका ख्याल रखना हारिब, इतना जुमला कह के वो उठ चुका था। हारिब ने एक बार लैपटॉप की काली होती स्क्रीन देखी और दूसरी बार मुड़ के उसे देखा, जहां वो अब मुस्कुराती सुकून से चाय बन जाने का इंतजार कर रही थी। ये इग्नोर करने वाला काम तो खिजर इब्राहिम का था ना, नवाल ने कहाँ से सीखा ये? यही सोचते वो उठा और उसकी तरफ बढ़ा। बहुत अच्छा किया आप उठाए। वो कप पकड़े और इसमें चाय डाले। मैं कुछ खाने को निकालती हूँ। एक तरफ चाय उतार के रखती वो मगन से अंदाज में बोली थी। वो बात करना चाहते थे तुमसे, हारिब ने कप उठा के चाय की देगची के पास रखते कहा। वो मुड़ते हुए रुकी। कौन? मुस्कुराहट अभी भी लबों से जुदा नहीं हुई थी। ये इतनी खुश किस खुशी में है? हारिब के दिमाग ने सिग्नल दिया, लेकिन वो झटक कर बोला, खिजर, पिछले 7 दिनों से वो काफी परेशान है। तुम जानती हो ना तुम्हारे मामले में। वो अभी बात कर रहा था जब नवाल के हाथ से पैकेट गिरा। हारिब ने मुड़ के देखा। उफ सॉरी, वो ऊपर वाले केबल से कुछ निकालते गिरते गिरते बची थी। हारिब को ऐसा लगा जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। वो परेशान है। 3 लफ्जों पे खासा जोर दिया था हारिब ने। या अल्लाह हारिब, आपने मेरा मग क्यों लिया? दे इधर, मैं अपने मग के बगैर चाय नहीं पीती। वो हारिब की तरफ बढ़ती उससे मग छीन के खुद के लिए चाय डालने लगी। नवाल, खिजर, हारिब ने तीसरी बात करना चाही। आपने कहा वो परेशान है। वो एक तरफ मग करती सीने पर बाजू बांध गई। आपने कहा, मैंने सुन लिया। कंधे उचका के वो मुड़ी। चाय ले आए प्लीज। वो सीरियस होती बाहर चली गई। हारिब ने लंबा सांस खारिज किया था। उन दो के दरमियान हमेशा वो फंस जाता था। वो चाय लिए बाहर बढ़ गया। वो कॉलेज से वापस आई तो आज भी बरीरा आपी के हाथ में मोबाइल था। वो मुस्कुरा के किसी से बात कर रही थी
اور یہ تو پچھلے پورے ہفتے سے ہو رہا تھا۔ وہ پہلے دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی اور پھر ان کے پاس سے گزر کے وہ اوپر چلی گئی۔ فریش ہو کے نیچے آئی تو آپی مسکرا کے اپنی گود میں رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ بیرا، اس کو نیچے آتے دیکھ آپی اس کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھو آریز کتنے پیارے لگ رہے نا۔ آپی کی بات پہ ابیرا نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر اسکرین پر دیکھا جہاں وہ مسکراتا کار کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پاؤں اوپر کار کے بونٹ کی طرف کیے، دوسرے پہ خود کو سہارا دیے وہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ لندن اتنی جلدی راس آ گئے انہیں؟ ابیرا نے بات مذاق میں اڑائی۔ ہے نا، میں بھی ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ لندن راس آ گیا ہے ان کو۔ بریرہ آپی کی بات پہ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ آپی تو آریز بولتی تھی نا، یہ ان کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ماما وہاں آ گئی تھی۔ ابیرا، کھانا نہیں کھانا کیا؟ ماما نے اس کے قریب بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ کھانا ہے نا، بہت بھوک لگ رہی، وہ معصومیت سے بولی تو ماما اسے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ابیرا نے ایک بار مڑ کے آپی کو دیکھا جو اب کسی کو میسج کر رہی تھی۔ نارمل ہونے کے لیے 7 دن اور خضر ابراہیم کو بھولنے کے لیے 7 سال بھی اسے لگتا تھا کہ کم ہوں گے۔ وہ گیا ہی کیوں؟ گیا بھی تو اسے بتا کے کیوں نہیں گیا؟ بتا کے بھی نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اسے خود سے ایسے باندھ کے تو نہ چاہتا۔ وہ سر بیڈ کی بیک سے لگائے اسے سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے تو دل ویسے ہی دھڑک اٹھتا تھا، لیکن اس نے کبھی خود سے بھی اظہار نہیں کیا۔ لیکن اب تو وہ اللہ سے کر سکتی تھی باتیں اس کے متعلق، کیونکہ اب تو وہ محرم تھا نا۔ محرم، یہ لفظ نوال کو اتنا چبھا کہ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا آج، اور اس بار اس کے نمبر کم تھے کیونکہ اس بار پڑھائی پہ سختی کرنے والا موجود نہیں تھا۔ یہ جرم بھی خضر ابراہیم کے کھاتے میں لکھا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی حارب نے اسے بتا دیا ہوگا اور ابھی وہ بھرا بیٹھا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پہ کال آنا شروع ہو گئی۔ نوال نے اسکرین کو دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ لبوں تک روکی۔ تو آج یاد آ گیا تھا موصوف کو کہ کوئی نوال بھی ہے، وہ بھی تب جب کہ اس کا رزلٹ برا آیا ہے۔ ہاں، اب فون تو بس ڈانٹنے کو کیا ہوگا۔ نوال بدگمان ہوتی موبائل آف کر کے سر سرہانے پہ رکھ چکی تھی۔ وہ نہ چاہتا تو آج نوال کلاس میں چوتھے نمبر پہ نہ آتی۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی اور ایک بار پھر خضر ابراہیم کو اس نے بہت کوسا۔ وہ گیا کیوں؟ گیا بھی تو اسے خود پہ اتنا کانفیڈنس کیوں دلا گیا تھا؟ خضر نے کہا تھا وہ اپنی کلاس کی ٹاپر ہوگی، لیکن وہ چوتھے نمبر پہ تھی۔ ایک اور جرم، ایک اور غلطی، خضر ابراہیم کی غلطیوں میں اضافہ۔ حارب، وہ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ روئی تو نہیں رزلٹ پہ؟ حارب کلاس سے نکلا تھا جب اس کا میسج آیا۔ روئی تو ہے اور بہت روئی ہے، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا اس نے۔ میسج ٹائپ کر کے حارب نے ایک بار میسج پڑھا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ خضر بہت پریشان ہوگا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہاں تھوڑی سی اپسیٹ ہے، لیکن سیکنڈ ایئر میں کر لے گی کور۔ حارب نے میسج کو موڈیفائی کیا تھا۔ روئی تو نہیں؟ وہ پھر سے وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے جانے کے بعد وہ روز روتے ہوئے ہی سوتی تھی۔ خضر، وہ ٹھیک ہے، حارب نے اسے تسلی دی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے فرمائش آئی تھی۔ حارب کو کبھی کبھی اس پہ ترس بھی آتا تھا اور غصہ بھی، اور نوال کے ساتھ بھی اس کا یہی حال تھا۔ وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے۔ وہیں جا رہا ہوں، دکھاتا ہوں، اس نے خضر کو میسج کیا اور یونیورسٹی سے نکلتا وہ نوال کے کالج کی طرف بڑھا۔ نوال کے کالج کے باہر وہ اسے آتا دیکھ موبائل پہ خضر کو کال ملا چکا تھا، اور کال ملا کے اس نے سامنے ڈیش بورڈ پہ موبائل اس طرح رکھا کہ خضر کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سارا راستہ چپ چاپ گزر گیا۔ جیسے ہی وہ اتری حارب نے موبائل اٹھایا۔ وہ روتی رہی ہے، خضر کا پہلا جملہ یہی تھا۔ پتہ نہیں وہ پوچھ رہا تھا کہ حارب کو بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں تم نے؟ اس نے بال بھی نہیں بنائے آج، شاید رات وہ سوئی بھی نہیں ہے۔ حارب، میں نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، وہ بیچارے لہجے میں بولا تھا۔ حارب چپ تھا، کہتا بھی کیا؟ حارب نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ غلطی کس کی ہے۔ پلیز ٹیک کیئر آف ہر، پلیز، اس کے لہجے میں منت بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہ رہی ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی مانتی تھی۔ حارب ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا، موبائل ابھی بھی ڈیش بورڈ پر ہی رکھا تھا۔ مانتی تھی، خضر نے آہستہ سے کہا۔ حارب کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے کمرے میں کھڑا وہ شاید باہر دیکھ رہا تھا۔ شی ول بی اوکے، ڈونٹ وری، حارب نے اسے حوصلہ دیا۔ شی شوڈ بی، خضر نے زور دیا تھا اور پھر وہ کال کاٹ گیا۔ نوال نے اسے بے بس کر دیا تھا، حارب نے سوچا۔ وہ سامنے صوفے پہ سکون سے بیٹھی نوال کو دیکھ کے حیران تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ نوال، حارب کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ جی، وہ ایسے ہی پرسکون سی تھی۔ تم جانتی ہو نا یہ خضر کا خواب ہے، حارب نے اسے جیسے یاد کروایا تھا، تو اسے جیسے فرق نہیں پڑا۔
तुमने पूरा साल इसकी तैयारी की है नवाल। हारिब ने दोबारा कोशिश की। आपको किसने कहा? वो सीधी होके बैठी। मैंने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की। उसने जैसे अपना गुनाह कबूल किया था। 2 मिनट तक हारिब उसे देखता रह गया। इन 3 सालों में कितना बदल गई थी वो। खिजर की नवाल से बहुत मुख्तलिफ थी अब वाली नवाल। नवाल ने नजर उठा के उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। खिजर को गए 3रा साल था। नवाल के 2nd ईयर में भी मार्क्स कम थे। बचपन से उसे ये यूं कहें कि खिजर को शौक था कि वो भी हारिब के साथ डॉक्टर बनती। इसीलिए उसने 2nd ईयर अबीरा के साथ इम्प्रूव की थी और साथ साथ उसने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी की। पूरा 1 साल। पूरा साल हारिब को कभी महसूस नहीं हुआ कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, बल्कि वो तो चुप रही थी क्योंकि उससे दूर होने के बावजूद भी खिजर इब्राहिम उससे बेखबर नहीं था। किस एकेडमी में वो तैयारी करेगी, कौन सा टीचर उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये तक भी खिजर इब्राहिम के हुक्म के मुताबिक हुआ था। और आज जबकि वो मुकम्मल तौर पे तैयार थी, कुछ देर तक उसे टेस्ट देने निकलना था, तो वो क्या कह रही थी। हारिब अफसोस भरी नजरों से उसे देख रहा था। खिजर इब्राहिम से जंग में अपना कैरियर तबाह मत करो नवाल। हारिब ने 5 मिनट की खामोशी के बाद उसे कहा था। बाबा कमरे के दरवाजे में खड़े थे क्योंकि उन्होंने ही तो हारिब को कॉल करके नवाल की जिद का बताया था। नवाल मुस्कुराई। न जाने क्या था उसकी मुस्कुराहट में। कहीं पढ़ा था मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। वो सोफे पर सीधी होकर बैठती टांगे मेज पर फैला गई। ये जंग है या मोहब्बत? हारिब के अगले सवाल ने भी उसे गड़बड़ाने का मौका नहीं दिया था। दोनों। वो कंधे उचका गई। हारिब ने लंबा सांस खारिज किया। एक बार मुड़ के बाबा को देखा। वो चुपचाप अंदर चले गए। फिर मुड़ के नवाल को जो सुकून से उसे ही देख रही थी। हारिब के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था, खिजर इब्राहिम। उसने जेब से फोन निकाला। उसका फोन देख के नवाल की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। जानती थी अब बात उस तक पहुंचेगी और वो वहां बैठा भड़क उठेगा। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता है। नवाल सोच में मगन थी जब उसकी आवाज कानों में पड़ी। कैसे हो हारिब? वो मसरूफ था। शायद उसकी आवाज सुन के ही नवाल को अंदाजा हो गया था। हारिब ने फोन स्पीकर पर डाल के सामने मेज पे रख दिया था। नवाल कैसी है? उसकी टेस्ट की तैयारी कैसी है? उसे खुद छोड़ आना और वापसी पे भी खुद ही पिक करना। अंदर जाने से पहले उसे कहना आयात का विर्द कर ले, वो घबरा जाती है। वो सामने वाले की खामोशी को महसूस किए बिना ही हारिब को हदायत दे रहा था। एक पल उसे महसूस हुआ कि वो अकेला बोल रहा है। हारिब आर यू देयर? उसने जैसे पूरी तवज्जो से पूछा था। नवाल ने हारिब को देखा और हारिब ने सोफे पे आगे को होके गोद में हाथ रखे हुए थे। नवाल टेस्ट नहीं देना चाहती। हारिब ने सर झुका के ऐसे कहा जैसे सारी गलती उसकी हो। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छाई थी। नवाल को हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। वो बोल क्यों नहीं रहा? नवाल के दिल ने पूछा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ हारिब। संजीदगी से भरपूर उसकी आवाज नवाल को मजा दे गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, हारिब ने उसे यकीन दिलाया। दूसरी तरफ 2 मिनट तक वो खामोश रहा। फिर टू टू की आवाज पे हारिब ने लंबा सांस खारिज किया। अगले ही पल वो वीडियो कॉल कर रहा था। हारिब ने मोबाइल सामने मेज पे रख दिया। मेज पे पड़ा गुलदान मोबाइल को सहारा दे रहा था जिससे सामने बैठी नवाल साफ नजर आ रही थी। हारिब उठ गया। नवाल ने मुस्कुरा के सामने नजर आते खिजर को देखा। वो मेज पे हल्का सा झुका खड़ा था, बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड किए। बाल हस्बे आदत बिखरे थे। वो एक दूसरे को 3 साल बाद रूबरू देख रहे थे। जबकि खिजर ने सामने बैठी जालिम लड़की को देखा जो कि ढीले से जूड़े में दुपट्टा सीने पर फैलाए, एक सिरा आगे और दूसरा सिरा पीछे की तरफ गिराए, सोफे पे दोनों पांव ऊपर को करके बैठी, गोद में बाव लिए सेब के कतले खा रही थी। मुझसे हिसाब किताब बाद में कर लेना नवाल जैदी। खिजर ने आगे को होकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। हाँ, सेब का कतरा आगे को करके उससे नवाल ने रोकना चाहा। नवाल जैदी नहीं, नवाल खिजर इब्राहिम। वो उसे रोकती सेब मुंह में डालती मुस्कुरा के बोली थी। शायद उसे जता रही थी कि वो भी तो यही करता आया है। ओह, वो हल्का सा पीछे होता नफी में सर हिला गया। नवाल खिजर इब्राहिम। मबहम सी मुस्कुराहट ने खिजर के होंठों का अहाता किया था। गो एंड चेंज, टेस्ट के लिए जाओ, उठो शाबाश। वही उसका नरम लहजा। नवाल ने 3 साल इस लहजे को मिस किया था। आज वो सामने इतने प्यार से बोल रहा था तो नवाल की आंखों के कोने तेजी से भीगे थे। मैं टेस्ट नहीं दूंगी मिस्टर खिजर इब्राहिम। आगे को होकर स्क्रीन पे नजरें गाड़े वो बोली नहीं थी, फुनकारी थी। लिसन टू मी खिजर इब्राहिम। वो कुछ कहता नवाल ने उंगली उठा के उसे वार्न किया था। ये कौन थी? खिजर की नवाल तो वो कहीं से नहीं लग रही थी। वो उठी और सोफे की बैग पे जाके सोफे की बैग को कस के पकड़ लिया। शायद खुद को रोने से बाज रखने की एक तनबीह थी।
हर बार आपकी क्यों चले? सोफे पे बाजू रख के वजन डालती वो मुस्कुराई। नवाल मुझसे शादी करोगी? जी जी, नवाल तो आपके हुक्म की पाबंद बैठी थी, मुंह उठा के कबूल है कहने को मरी जा रही थी, और आप? उसने हल्का सा सर झुका के दूसरी तरफ मुंह किया। और खिजर? वो तो गंग नवाल को देख रहा था। उसकी नवाल का लहजा इतना सख्त, इतना तीखा तो कभी नहीं रहा। वो तो नरम सा बोलती थी। दूसरे दिन मुंह उठाया और लंदन। वो अब उसकी तरफ देख रही थी, और हाँ, रो भी रही थी। यही तो एक शख्स था जिस पे इतना मान था उसे, और उसने क्या किया था? आप मुझे मिलके नहीं गए। मिलके तो बहुत दूर की बात है, आपने बताना तक मुनासिब नहीं समझा। ओ हाँ, बोलते वो एकदम सीधी खड़ी हुई और चुटकी बजाई। आपने नहीं बताया, मेरी फर्माबरदारी देखें। वो मुस्कुरा के फिर से सोफे पे बैठी। आपको बता रही हूँ कि टेस्ट नहीं दूंगी। पीछे को होकर बैठ के वो फिर से पांव ऊपर कर गई। खिजर साकिन सा उसे देख रहा था, और नवाल ने आगे होके रेड बटन दबा दिया, और स्क्रीन के काले होते ही नवाल की मुस्कुराहट सिमटी थी। सोफे की बैक से टेक लगाते वो आंखें मूंद गई, और आंसू एक लड़ी में बहना शुरू हुए थे। कितना सोचा था उसका सामना नहीं करेगी। जिस दिन उसका सामना हुआ उसे एक लफ्ज नहीं कहेगी, उससे कोई शिकायत नहीं करेगी, लेकिन उसके सामने आते ही शिकायतें भी, आंसू भी सब खुद ब खुद ही निकलने लगे थे।